Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let me record this session as well on my side so that I can send you a recording. So that once this is done, then I can upload that on the YouTube. The team can upload that on the YouTube as well. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is an interview preparation. After the interview preparation, there will be a short Q&A session that we will do. This is primarily going to be in English, the interview preparation, but we will talk in Urdu, Hindi, or some of the other languages as well. ये जो interview preparation है, ये हमारे student का है, तो मैं इसको English में preparation करवाऊंगा, उसके बाद मैं उर्दू में आप सब लोगों से सवालात ले सकूंगा. So please be patient, okay? And be here because I'm here for the next almost 45 minutes to 1 hour. You can raise your hands if you want to ask a question, and then once I have the availability, I will bring you forward, and then you can ask those questions. If you want to ask the questions, the best possible way to do is to go on stream.annafe.com. I'm going to show it to you. Just give me 1 minute. So this is the website. If you have to go online, you can go online on stream.annafe.com. There you can say crack the Canadian police interview. This is an interview preparation for our member who is going for Canadian police as an information security architect. So you can come in here and you can ask a question or whatever you want to do. I will be able to see it and inshallah answer it back as well. Make sure, Yusuf, that we are able to see I'm not able to see the question. Please, if you can go and ask the team if they can check basically the application as well. The other thing is you can always join the Zoom session and you can ask the question there as well. Okay. So this is an interview preparation for one of our students. He came to Canada as an immigrant on PR, and then he was not able to find a job. So for many years, he was doing different odd jobs. By profession, I think he completed his degree, his MBA. Muhammad, can you give me your rundown, how you came to Canada? What did you do? What did you do? All of those things. Can you please give me some breakdown, please? Yes, sir. I did my graduation from Pakistan in mathematics and physics, and then I migrated to UK as a student. I completed my MBA from UK, University of Sunderland, and after that, I moved to work permit, and then I eventually got the British passport. And in 2000, I think 6 years back, I came to Canada, and I was working here as a Uber driver and in constructions, so different odd jobs I did. So in I think 1.5 years back, I just started. I joined the Al Nafi and learning the new skills. So fortunately, I got the job in one of the financial insurance company, so and now I'm working with them. Fine, to sum it up, you went to UK from Pakistan. Yeah. On a student visa. You completed your MBA from Sunderland University, and then you got the work permit, but you couldn't find a job, right? Right. For many years, you were working in UK as a security officer. Security. Yes, as a security officer. And then once you got your British passport, then you realize I've, done so many things, but I couldn't find a job because you never had the skills. Did the university ever help you after completing a degree to find a job or something like that? You're right. Right? They never did, right? Yeah. Then you came after like roughly 10 years, you stayed in UK, right? Yeah, almost. After 10 years, then you came to Canada as an immigrant? Yeah, as an immigrant.
As an immigrant, you applied for here, and then you came here, and then you started doing Uber and some of the other construction jobs, right? Yeah. His story is very fascinating because it tells you, the grit that this person had. When he came to me long ago, you started your degree program, right? Like our courses. That was Yeah. the when you started. CAT. Then you did your DevOps as well later on and whatnot. Yeah, exactly. So when you did your CAT program, you secured your first job. Yes, I got my first job after 3 months, I think. After 3 months. Yeah. And you started earning like how much? 75, 80,000 pounds per annum? 75, 80,000 dollars? Yeah, about 80,000. About $80,000. So you started earning $80,000, right? And this was all after how many months of preparation on the career advancement track, or which is now known as Diploma in Cloud Cybersecurity? Yeah, I did. I studied about 3 months when I got the job. So then I keep going and learning. And you kept on learning, you kept on yeah. doing all of those things, and now, mashallah, you're doing your DevOps as well, going through some further interviews, so on and so forth, right? Yeah. So what the reason I'm highlighting is that because this person, he worked very, very hard to ensure that he's successful, because he never lost faith in his education. But the problem is that you can get all the best education you want in the world, but if you don't have the skills, you will never be able to find a job. The same scenario, all the PR, all the different people who are coming to Canada on PR, on permanent residency from different countries, and going to UK on a student visa and then securing PSW doesn't guarantee you a job. No, it will never will. It never did like 10 years ago, 20 years ago. It will never happen right now as well, because you're going through the same university courses. Our courses are way, way different because we teach you the job description. So when you go for the interview, you are telling them what you are doing on your job. And that's exactly what they're asking for, what they're looking for. So that enables you. So if you are a student, wherever you're coming from, whatever world you're coming from, Argentina, Mexico, USA, Canada, wherever you're coming from, we can train you in your own language in Spanish. Obviously, we use artificial intelligence and some of the other things to train you all the things. So there are millions of jobs available in North America in the high-tech sector, but it requires only one thing: your time and commitment. And if you're committed with that, then you can secure these jobs. Okay, he's a student who secured his first job after studies of 3 months' time. He has been working. This is one of the biggest financial company, BFSI, Banking, Financial Services, and Insurance. They also have a banking wing, an insurance wing, and financial services wing. He works over there. They also have an investment bank as well. And now he's looking for other better opportunities so that he can earn more as well. So we're going to talk about that. So the job that he got today is basically from Halton Regional Police Services, right? This is the job. This is the job that they have right now. And this is in Oakville, is that correct? Yeah, it is. Okay, this is in Oakville. So what we have is that this is the job, and what they're looking for is information security architect. Now, the pay scale that they're paying information security architect is between $100,000 to $113,000. Now, this is a government job, right? This is job now expired because they have already got all the candidates. So now they're just interviewing, going through the interview process, right? In today's role, we are going to go through all of these things. So if they ask you, describe yourself, what do you do? Or what have you done in the past? So this is your opening statement, because your opening statement is going to encompass everything that you will be doing or these people are asking for this role. So this is how you will start, okay? You will mention, my name is Mohammed. Thank you for inviting me, because they will invite you. So say, thank you for inviting me for this interview. I've been really looking forward to this. The reason that, before I can even explain you why, what are my experiences and whatnot, just let me start with this, that, I always wanted to work in law enforcement, agencies since I was a kid, because
one of the things, I'm an immigrant. I came from Pakistan to UK, stayed there for 10 years, became a British citizen. Then I came to Canada, and I became a British citizen, Canadian citizen. The reason that, in all of these areas, like what I saw, what happens in Pakistan versus in Britain versus in Canada, I can tell you one thing. In Pakistan, the police is the most corrupt police on the face of the planet. And I hated them and I despised them. And when I was a kid, I never wanted to work, in that place. However, when I went to UK, I fell in love with the police officers. Their uniforms, basically the level of commitment and service that they were doing for the community, and all these factors. And I never interacted with these people, but I've seen them, working hard for the benefit of the community, right? So then I came to Canada. Now I'm here in Canada, and I've seen these guys in action. I live in Mississauga, right? In Mississauga, there are so many police officers patrolling the streets, ensuring that we are really safe. And these police officers are not like Pakistan. I can tell you right now. In Pakistan, you can buy a police officer by just offering them $10. Simple $10. Yeah. Right? But like in Canada, no one can even dare to imagine that. That's the perception I have. I don't know what is happening, but that's the perception I have. And I really want to work and provide my services for the community where I am right now. So whether it's like, Halton or wherever I am, I mean, if given the opportunity, this is in Oakville, right? Yeah. So if given the opportunity, I would gladly move to Oakville, and I can walk with honor that I'm working with the best police, forces in Ontario. So it is just half an hour drive from a house. Half an hour drive. Just tell them like after a few months, I'm planning to move over there. So that I'm close to the place. So so that's my opening statement. I just wanted to say that and put it on the table, right? Now, the second thing is, what makes me qualify for this role? Well, I've been working as an information security analyst, as a DevOps engineer, SecOps engineer for quite some time. I've worked in consultancy, I've worked in financial services, and different clients, different customers, different industries. So what I bring on the table is like, if there is a requirement by Halton Police for designing, architecting, developing, and rolling out a complete end-to-end solution, whether on the cloud or on a hybrid or on a public cloud or on a private cloud, I'm your person. From selection of technologies, from selection from people, which are the most important assets in any organization, as you can understand, like Halton Police, what is the if someone asks me or ask you, what is the most important asset of this department? Halton Police, it's the people. People are the most important thing. So from people selection to participation, involvement, and then secondly, processes. What are the processes that we have to follow? And then the technology pieces. So I can get, so consider this as a complex jigsaw puzzle. I can build that jigsaw puzzle by whatever pieces you have. The pieces that you're going to provide me will be the business requirements. So utilizing the business requirements, protecting the information, protecting the assets, protecting sensitive information that resides in our on our database, like on the police database. I can certainly do all of those things. So as it is mentioned here, right? That is what I've been doing. The only difference is, I've been doing this in light with multiple business requirements, financial, consulting, SCADA, ICS industries, banking, insurance. I mean, it's all over the place, right? Different industries. But I never worked with law enforcement, but the concept is the same. It's the data that we have to protect. It is the data, because data is the lifeblood of whatever we have. And how do we protect it? As per the classification of the information,
whether it's sensitive, public, private, whatever it is, right? So on and so forth. Right. I can certainly coordinate with the deliverables of security team members and contractors as they design and implement solutions. So I can be not only an architect, but I worked on both sides of the fences, as a contractor as well, and as a internal staff as well, as an internal auditors as well, as an external, SME subject matter expert as well. So no matter where you throw me in or that I'm communicating to, I can relate to them on their own requirements and their own wavelength. So that's another skill I have. The third skill I have is developing risk assessments. So whether those risk assessments are for our digital assets, whatever digital assets you have, whether those are ISO 27001, which is the gold standard for information security protection, 27017 for cloud security, 27018 for cloud privacy, whether we are securing data in the data center or in the cloud, public, private, whatever it is, I can perform those risk assessments, even as per the best practices of CCSK, the cloud security, requirements, right? The cloud cybersecurity knowledge-based requirements, whatever those are, I can follow those end to end from class, identification of the assets, classification of the assets, performing risk assessments, evaluating them, looking at their vulnerabilities, threats, all of these things. Threats into vulnerabilities converts into our risks, right? So we do all of those things. So whether those are like performing those gap analysis, or internal audits, security audits, or external security audits, penetration testing, vulnerability assessment, network penetration testing, communicating, the requirements with respect to the different departments so that we can do a closure on all of these things. No matter what the package is, I can get it delivered. That is what I've been doing, right? And as it is mentioned here, right, इसकी यहाँ पर उन्होंने mention किया, it is mentioned here, vulnerability detection, protection, remediation. So if they say, how do you do the remediation part? Well, for example, the biggest problem that any organization has is, patches. We may have, Halton Regional Police may have different systems, Linux systems, Unix systems, Windows systems, Macs, whatever those are, right? Macs are running, a version of Linux anywhere as the code base, whatever those are, scan them, perform vulnerability scanning, or if there are web applications, perform web application scanning as per OWASP, OWASP requirements, the WSTG requirements, the web security testing guide requirements, all of these things. And then coming up with some remediation plans of how we can remediate. Now, obviously, for the remediation plan, I have to communicate and sit down with the asset owners to ensure that they follow those requirements. And we have a remediation plan in front of ourselves, like, Q1, Q2, Q3, Q4. As soon as audit is done, boom, 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 like we are able to close all of these requirements. That's what I can do, right? That's what I've been doing. This is exactly what you have been doing, right? The other thing is, ongoing, performing continuous assessments. I'm a very automation heavy guy. I can use Python scripts, using Selenium and Bash and Python in terms of creating different jobs automatically to keep on testing our requirements and keep on informing all the stakeholders if the requirements are there. Or like if we find any vulnerability or whatever the case is, before the public informs us or anything happens, we are able to make action. We are able to take actions prior to that. And that's something I can do. Cost estimates, whatever the cost estimates are, whether we are using internal solutions or external solutions, public cloud, private cloud, on-demand instance, spot instance, or buying the instance in the first place, I can give you complete rundown of end-to-end. What do we need to ensure that we are able to have the best, we do an in-depth cost-benefit analysis and understand our requirements and come up with a way where we can address all these requirements out of the gate, right? And then the other requirements, legacy processes, procedures, highlight, address areas, improvements, we will cover them later on. So this is your first interview preparation for this one.
I believe they will only take one. They have mentioned the salary. No, there are two. Two interviews. This is That's the fine. first. Yeah, this is the first one. So this is the salary range that they have mentioned, right? By 6th of June, the quoting completion or whatever the case is, human resource staffing advisor. So you're already there. You're already in the system. So now that's why they're doing all of those things. I believe selected job type, full-time, permanent salary. This is the salary that they mentioned, right? And the benefits are good, but go back, review all the key requirements, and then come back to me next time. This is in person. This is not remote, in person, right? Yeah. But what will give you the option is basically that, you will be able to work in depth with all of these things, making sure that you make like a huge commitment, like a huge impact to the community where you're living in, right? Okay. So go back, do some good preparation. As I told you, some of the key things. This was your open statement. Now, if they jump in and they ask you specific questions regarding your CV or whatever the case is, be prepared for that. You have done your diploma in cloud cybersecurity, all the key courses. You have done your DevOps as well. I'm not sure even you're doing sysops or not. You see, they're asking for sysops. You saw that? Yeah. Cost estimates, designing, implementing, rolling it out. What is that? Yeah. This is all sysops. Yeah. They're saying like there's a mention here about cloud, right? So they mention about cloud, something over here. Let me see, cloud, right? So hosted on-premise or whatever the case. Look here. They mention test and verify final security structures as well as implementation of the cloud hosted and on-premises hosted solutions. See that? Yeah. So every job, wherever you go, whatever you are, whatever you're doing, they have three, like there are common components. Deployment cloud cybersecurity is in the middle. There's DevOps, there is SysOps, there is AI. Combine them, this becomes AI Ops. Then there is big data, and then there's offensive security, or you can add blockchain, or you can add whatever the case is. These 5 things are the common areas where you have to focus on to get any job you want, wherever you want to go. Any job in cybersecurity, in GRC, in DevOps, in SysOps, in SecOps, in AI Ops, in ML Ops, and blockchain Ops, whatever you want to do. Any industry, there are 20 industries areas, different technologies. Whatever you want to do, you need to learn these 5 key skills. That's it. This is what we have. This is RQF level 7 on our end. We are teaching you the job description from day one. This is what we prepare you for, right? So for those people who are here coming into Canada as immigrants, or those who are in the UK on PSW visas, they can easily secure jobs in 3 to 6 months' time. And when we say that in 3 to 6 months' time, we say that with conviction and with certainty. But what we need from you is to work hard. Okay. Thank you for your time, Mohammed. Go and do your preparation. I will be here to help you. 27, we have some time. I will be traveling this coming, Friday. But I will give you some more insights before I travel so that you're fully prepared, inshallah. Okay. Okay. Thank you very much, sir. I will give you some, some rundowns and some voice notes as well to ensure that, you invested a little bit of money, you got $80,000, right? So alhamdulillah, you came to my house and you give me some dry fruits and whatnot, right? Yeah. And what I said to you, do you remember what I told you? Yeah. Just focus and continue studying DevOps and other. Yes, I said do not stop your studies, because if you do, you will be left behind. Right? So keep on studying, keep on studying, keep on studying. People buy Netflix or these Disney or these different memberships for wasting their money. Maintain this membership, because you will keep on growing. What we're teaching you, you will keep on growing, keep on growing. You will keep on going forward. Yeah. Right? So from 0, you went to 80. From 80, 85, inshallah, you'll be going to 112, inshallah. And there you can go forward as well. Okay? So Jazakallah khair for your time, and be in touch. Jazakallah. Okay? Inshallah, sir. Thank you. Okay, I'm going to take a pause here. I'm going to stop the recording so that we can put it there on for all the PR candidates and those people who are in Canada or in the US on green card, or in Canada on PR, or in Australia or in New Zealand or in UK on PSW. They all can study these courses. And the most common course that they must do, all of them,
which is very, very important for them. And they can do all of these things in a record amount of time. If they go here and just type in alnafe.com, right? Here, the course name is, which is very, very important for you, is to go on courses, right? And go on this course, DevOps, SysOps, AI. If you really want to do something, secure the job. There are different ones, DevOps, SysOps, blockchain, that's also demanding, cloud cybersecurity track, yes, but this one is the one, DevOps, SysOps, and AI advancement track, because this covers deployment cloud cybersecurity, deployment DevOps, deployment SysOps, and deployment AI, all infused together. That gives you the next generation skills, and you'll be able to work and earn, these kinds of salaries, like 150, 175, 200,000 is the max that you can earn by going through these courses because we provide you the training, the internship, the interview preparation. That's something that you just saw us doing right now. All of these things, resume development. And once you go there, how do you secure your job for the first 30, 60, 90 days? Mohammed, you still here? Yes, Mohammed, I'm here. do you remember when you went to the job, you said, like, what am I going to do? And once I'm on the job, where you're working right now, what did I said to you? I said, I'm here for the first 3 months, right? Yeah, you're right. Yeah. And I assisted you for the first 3 months? Yeah, you assisted me. Right? And alhamdulillah, you're here. Even now, even still, when I'm stuck, I need some information. You can always call me. I'm always available, right? I'm always available, inshallah. Whoever number I have saved, I will pick up their phone. If the number is not saved, I won't be able to pick it up. But we are going in the internship program now. The internship program is the most advanced internship program in the world. No university or college or institute or any place, they will train you as the way we are training you. This is what sets us apart from everyone else in the industry. And that's what we're doing. Jazakallah khair for your time, Muhammad. I will see you soon. And inshallah, I will hope to hear good news of your selection soon as well. So don't worry, go with full confidence, prepare yourself. We'll take half of the interview next time, okay? I'm going to open the floor now to ask some questions. So whoever is here, I'm going to stop basically the recording, and then I will ask the questions. So thank you for your time, and let's come for the Q&A, which won't be recorded, by the way. Okay, so Shawez bhai, boliye bismillah. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाईजान। अच्छा फैसल भाईजान, मैं तकरीबन 2 दिन से ना आपसे रब्ता करने की ट्राई कर रहा हूँ। दरअसल ना मुझे लिंक्डइन के जरिए ना एक कंपनी ने अप्रोच किया था फॉर डेवऑप्स रोल। तो उधर मेरे 2 इंटरव्यू हो तो गए हैं। ये परसों मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था, तो वो भी पास हो गया। तो इससे पहले आपको बताया था ना कि एज अ लिनक्स सिस्टम एडमिन की जॉब कर रहा था। तो ये मेरी डेवऑप्स की ना पहली जॉब है, जो मैंने अभी 2 इंटरव्यू पास किया ना। अब उन्होंने मुझे परसों कहा है फ्राइडे को ना, जुम्मे को, कि हम आपका ना फाइनल इंटरव्यू लेंगे सीईओ के साथ। तो वो मैं जरा दरअसल आपसे ना गाइडेंस लेना चाह रहा था। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सेंड की हुई है, वो आप ना मैंने तस्वीर सेंड की है। ऐसे क्या दे रहे हैं आप? मैंने तो उनको 1.5 लाख कहा है कि मैं इससे नीचे नहीं लूंगा। हाँ, तो जब तुम्हें 1.5 लाख बोला है और तुम हाँ। जा रहे हो, तो जब सीईओ के पास लेके जा रहे हैं तो इसलिए लेके जा रहे होंगे ना तुम्हें। बिल्कुल, दरअसल जो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू है ना, वो तो उन्होंने मुझे ठीक ठाक घुमा फिरा के ना लिया है, तकरीबन आधे घंटे का। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है, काफ़ी अच्छा चला गया था। और उसके बाद फिर ना उन्होंने मुझे साथ ही मैसेज कर दिया था ना कि हम आपका ना अब तीसरा इंटरव्यू लेंगे, फाइनल इंटरव्यू। ये लाहौर में ही है, सॉफ्टवेयर हाउस है। तो उधर मेरा हुआ था इंटरव्यू। कुछ भी नहीं है और तुम्हें, जो सारी चीजें हैं, बिल्कुल। शेफ, पपेट, बैश, पावर शेल तो मैं नहीं पढ़ाई। पावर शेल मैं पढ़ाऊंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे अच्छा पास अच्छा। बहुत सारा पहले ही काम है दूसरा, लेकिन वो एडिशनल है, वो हमने चीजें हटा दी। हमने कहा भाई मेरी मर्जी, जब मैं खत्म करूंगा फिर मैं बता दूंगा कि आ गया, ठीक है ना। जी जी। अभी मेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है CCSP, ISSAP, और उस पर कर रहा हूँ मैं काम। शेफ, पपेट, एंसिबल है, जेंकिंस, गिट, AWS कोड हाँ, उन्होंने पाइपलाइन, मेरे से पूछा था इन सारी चीज़ों के बारे में ना, ये सब तो तुम मैंने पढ़ा उनको चुके हैं, सारा बता बताया। सकते हो तुम्हें AWS पे काम आता है, तुम यहाँ टीम में काम कर रहे हो। 1.5 लाख की जी जी, जॉब मैंने उनको बताया था। वो अभी ये जो आप वो एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे ना इंटर्नशिप में, ERP नेक्स्ट, तो मैंने उनको वो भी बता दिया कि मैंने इस चीज़ पे भी ना काम किया, कि मैंने CI/CD पाइपलाइन क्रिएट किया, उनको सारा एक्सप्लेन किया था।
तो हाँ। वो काफी इंप्रेस हो रहे थे कि क्या नाम है, इस बंदे को काम आता है। भाई तुम्हें काम आता है, हम क्या करा रहे हैं, मैं मजाक करा रहे नहीं 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 नहीं। हैं। अच्छा अच्छा फैसल भाईजान, एक एक और चीज, मैं इसके बाद ना वो बाय करने का सोच रहा था सिसअप एडवांसमेंट ट्रैक, क्योंकि मैं हाँ ये नहीं था चाह रहा कि मैं बंदा सिर्फ जॉब की बेस पे ना बंदा ऐसे करता रहे, अपने आप को अपडेट भी करना था। तो मैं वही हाँ आपसे कहना था कि इंशाल्लाह ना इसके बाद सिसअप एडवांसमेंट ट्रैक बाय करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर तुम ठीक। सिसॉप्स में जाओगे तो तुम ना आर्किटेक्ट लेवल पे जा सकते हो। आर्किटेक्ट लेवल पे देखो, अगर तुमने डेवऑप्स सिसॉप्स एआई मिला दिया, ठीक है ना, और हम्म, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी तुम्हें इलास्टिक सर्च ये सब चीजें हैं उसमें आती हैं, रैल तुमने वही पढ़ के, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ के तुमने पहली जॉब पकड़ी थी अपनी उसकी, बिल्कुल। जी जी, लिनक्स। लिनक्स सिस्टम एडमिन की। तो अब तुम ये कर रहे हो, तो अगर तुमने वो कर लिया और तुम उस पर घुस जाते हो, तो तुम्हें सबसे जी बड़ा जी। जो एडवांटेज है वो ये है कि तुम्हें इंशाल्लाह वो नहीं होगा, यानी कि कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं यार, लिनक्स को लेके कोई भी मुझे और मसला नहीं आगे आएगा। बड़े आराम से घुस सकोगे। आई मीन यू विल बी एबल टू गो इन मच मच फर्दर। ठीक है, एज जी। एन आर्किटेक्ट लेवल पे तुम काम कर सकते हो फिर ना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। सो जी जी। इट ऑल डिपेंड्स के तुम्हें करना क्या है ना। आई मीन व्हाट डू यू हम्म, रियली, ये चीज मैटर करती है ना। बाकी तो इंशाल्लाह, आई मीन इट्स नथिंग, हो जाएगा, तुम निकाल लोगे उसको। जी जी इंशाल्लाह। हाँ तो बस आपसे यही कहना था, दरअसल ना 2 दिन से आपसे रब्ता नहीं था हो रहा, तो अभी मैंने आते साथ ही ना हाथ उठा लिया कि आपसे बात हो जाए। हाँ, मैंने देख लिया था, तो आई ब्रॉट यू फॉरवर्ड। ठीक है, तुम्हें कोई भी मसला है, तुम फ्राइडे को है ना, तो जी जी। मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कर लो, मैं तुम्हारी जो उसमें तुम्हें गाइडेंस दे सकूंगा कर दूंगा। सीईओ जो सवाल करेगा, हर सीईओ हम्म, टेक्निकल, मैं अपनी कंपनी में बहुत टेक्निकल आदमी हूँ। हर सीईओ टेक्निकल नहीं होता, ज़्यादातर सीईओ हल्के फुल्के होते हैं, उनको इतनी टेक्नोलॉजीज का पता नहीं होता, वो बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं एक हाईली टेक्निकल आदमी हूँ, ठीक है ना, लेकिन साथ हम्म, साथ मुझे अल्लाह ताला ने मैनेजरियल स्किल्स भी दी हैं, दूसरे स्किल्स भी दिए हैं, सी लेवल की स्किल्स भी दी हैं, तो इसलिए बात करना भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। सब कुछ जी है। जी। द पॉइंट इज के यू विल बी एबल टू सिक्योर इट। आई विल गिव यू सम टिडबिट्स। तुम्हारा टेक्निकल राउंड तो हो चुका है, तुम उसमें बिल्कुल। रोल क्या प्ले करोगे, दैट विल बी द की थिंग जो सीईओ तुमसे सुनना चाहता है ना, कि भाई व्हाट रोल कैन यू प्ले। तो एज बोलो, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, आई अंडरस्टैंड दैट योर कंपनी इज लुकिंग फॉर, इज ट्राइंग टू एक्सपैंड, राइट। सही है ना। बिल्कुल। और इसका क्या नाम है, मैं इसका देता हूँ, इसका जो नाम है, करती क्या है ना ये काम, हम्म। ये टेक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज, राइट, .io, जी जी। राइट। जी जी, ठीक है हाँ ना। जी। सो उसको देखते हैं, खोल के तरह देखते हैं कि क्या है। सो बोलो भाई, आई वेंट थ्रू योर सर्विसेज, दे यू प्रोवाइड डेटा analysis, digitization, automation, cloud services, mobile, web, and whatnot. I mean, what I can offer, what I can bring on the table, what I bring on the table is basically my capability to assist हम्म, your customers from end to end. ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलना कि भाई एंड टू एंड, आई कैन असिस्ट यू फ्रॉम एंड टू एंड। अब ज्यादा जो तुम्हारी ठीक है। इंग्लिश कम हो जाए तो फिर उर्दू में आ जाना, तुम पाकिस्तान में हो, ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने ये जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था ना, हाँ ये कब तक मेरा इंग्लिश में ही हुआ था, तो मैंने उनको इंग्लिश में ही हैंडल किया था। तो जैसे ही उसने उर्दू स्टार्ट की, फिर मैं भी उर्दू स्टार्ट करने लग गया। ठीक है, सही, ठीक है ना, ठीक है, सही है। तो तुमने इसी हम्म, तरह बात करनी कि भाई देखो, योर सर्व, आई मीन इफ आई लुक एट द सर्विसेज, दिस इज अ कंपनी व्हिच इज अ सॉफ्टवेयर हाउस प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज, राइट। हम्म, So from big data, from data analytics, I understand big data analytics. What I'm बिल्कुल। also doing nowadays is basically, yes, I'm a DevOps engineer by heart. Yes, I'm a cloud architect by heart. So if you want me to develop a network from scratch on हम्म, on-demand instance or spot instance or a combination of both on a public cloud, private cloud, hybrid cloud, from end to end, whatever the business requirements are, if they are PCI DSS requirements, or the client requirements are PCI DSS or ISO or whatever industry specific industries they are, I can help you craft हम्म, that things for your customers. जी जी। Can do that. But what I want you to do is support my studies because I want to study more. So बिल्कुल। there are certain courses I would like to do. If you can support that, because open AI is the next big thing. So हम्म, imagine your company is the first company in Lahore who is doing open AI integration into everything. And I can help you with that journey. And we can set up that thing. बिल्कुल। Open जी जी। AI infusion, whether it's BART or AWS Bedrock or ChatGPT, OpenAI, whatever the case is, right? We can integrate that into automation, right, हम्म, for cloud.
for web applications, for chats, robots, for Robots. services, for managing the cloud orchestration, for doing the automation, for business intelligence analysis, for digitization, digital transformation, PCI DSS, or whatever the case is, right? For data analytics, you name it and we can get it done. Even if it's network, software-defined networking, yes. Hardware-defined networking, it's kind of challenging, but we can try. But these are the things I'm working on. ये सर से तुमने बोलना, ये पूरा कॉपी करके जाओ, लिखो, जाके बस पढ़ के आ जाओ. सीईओ बोलेगा यार तुम बताओ कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम लाहौर में एड्रेस दे दो, बोलेगा यार मैं तुम्हारे पास घर पे मिलने के लिए आ रहा हूँ. ठीक है इंशाल्लाह. ठीक है ना, बोले आज यार चलो बैठ के लस्सी पीते हैं, बैठ के लस्सी पीना. ठीक है बहुत ज्यादा गर्मी. ठीक है. बहुत ज्यादा गर्मी है इधर. बस ठीक है ना. तो जाके इस पे जाओ, ERP solutions के बारे में बता दो. ERP next is the next big thing. It's completely open source, completely automated. We can utilize it, sell it, customize it. We can do all of those things. I'm your guy. So बोलो from automation, digitization, digital transformation, OpenAI infusion, all I'm asking you is a good package, obviously, and then supporting my studies. So बोलो भाई मेरा RQF level 6 की चीजें स्पॉन्सर करो. AI ऑप्स मुझे एडमिशन, या जो मैं पैसे पे कर चुका हूँ, ये मैंने पैसे पे किए हैं, ये मुझे दे दो. वहां से मैं कंफर्म करा देता हूँ, ताकि ना मेरी पढ़ाई में स्पॉन्सर करो, मैं या तुम्हारे साथ काम करूँ. बस आने की जरूरत नहीं कि मैं यूके जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं. बस खत्म. ठीक है. ठीक है इंशाल्लाह. और बोलो बस. और एक दो जगह और अप्लाई किया हुआ है, लेकिन क्या नाम है, 2-3 दरअसल ना हुआ ये था, मैं जब इंटरव्यू देने गया हूँ ना, तो उसी दिन मुझे दूसरा मैसेज आया कि आपका इधर इंटरव्यू है. फिर मैं उधर एक दिन में मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं. तो सही है. लाहौर में. तुम अंदाजा करो, तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा. ठीक है ना. वो जो उन दोनों ने मुझे सजाद पास कर अहमद, दिया. वो भी लाहौर का लड़का है, उसकी हेल्प करो. सजाद ठीक है अहमद की हेल्प. इंशाल्लाह. ठीक है ना. वो यूके पहुंचा हुआ है. वो ठीक है. उसने आज इंटरव्यू दिया, 1.5 घंटे का उसका इंटरव्यू है. बड़ा अच्छा इंटरव्यू है. ठीक है ना. हाँ मैं सुन रहा था. हाँ ठीक है. देखो तुम सब लोग पाकिस्तान से बाहर निकल जाओ ना, बहुत कामयाब. इंशाल्लाह. ठीक है. तुम लोगों को सिर्फ बात करनी आनी चाहिए. ठीक है ना. वो बातें टोपी में नहीं, असल काम. ये नहीं कि सीधी वीडियोस नहीं बनाना है, काम असल काम. ठीक. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है ना. काम करने वाले बन जाओ, कामयाबी है. ठीक है ना. चलें, जज़ाकल्लाह खैर. जी सबीन इश्तियाक, बिस्मिल्लाह. हेलो, कैन यू हियर मी? यस आई कैन. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने इंटर्नशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया था, राइट? सो मैंने उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स तो फिल कर दी, लेकिन अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया. सो दैट्स द वन थिंग. क्योंकि मैंने आपका जो साइबर सिक्योरिटी में कुछ पढ़ना शुरू किया, तो जहां जहां मुझे मुश्किल हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैं किससे पूछूं, राइट? सो दैट्स द वन थिंग. सेकेंड थिंग, जो आपने ICS कंट्रोल की बात की थी, नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी लाइव क्लास हो, इज इट पॉसिबल कि आप कुछ जनरल ICS कंट्रोल का थोड़ा ओवरव्यू दे दें और कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज, सो दैट वी विल हैव अ आइडिया कि अगर हमको इम्प्लीमेंट कंट्रोल करने भी पड़े और टेस्ट करने पड़े तो वी नो. पहली चीज तो ये, आप सभी निश्चित हुई है जो किसी ऑडिट फर्म में काम करती हैं? ओह नो, मैं पहले ऑडिट फर्म में थी. आपने ऑडिट फर्म में कभी थी? अब थी. अब कहाँ पर हैं? एक्चुअली यू नो द हुसैन, यू अप्रोच मी फॉर हुसैन. तो मैं अकाउंटिंग मैनेजर थी जनरेशन फर्टिलिटी 1 में. सो आई जस्ट क्विट, राइट? आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी नाउ. तो मेरे पास अब टाइम है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ. आप जो है ना, आप सबसे पहले अपने CV बनवाइए, और अपना CV बना के ना, जो अहमद अली खान जो PwC में काम करता है ना, मैं आपको उसका CV फॉरवर्ड करूँ. ओके, ठीक है. आप मुझे ना, पहले आपके पास मेरा नंबर है? आपका टेक्स्ट मैसेज मुझे आया था मोहम्मद हुसैन के लिए. तो आप उसी पे मुझे मैसेज करें और बोलें कि ये मेरा CV है वर्ड में, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, ये मेरा वर्ड में CV है. फैसल भाई, आप प्लीज अहमद अली खान से बात कीजिए कि वो मेरे PwC आगे कर दे, फॉरवर्ड कर दे. वो PwC में आपको फॉरवर्ड कर सकेगा. आपके पास ना अकाउंटिंग एक्सपीरियंस भी है, आप ये वाला एक्सपीरियंस भी दिखाएंगी. दैट विल हेल्प यू गेट इनटू बिग 4 फर्म्स, अगर आपने बिग 4 में काम करना है तो. मैंने पहले बिग EY में ज्यादा था, तो मेरा EY का एक्सपोजर रहा है, मिडिल ईस्ट में भी और पाकिस्तान में भी मैंने वहाँ काम किया है. फिर आपको जल्दी यहाँ जॉब मिल जाएगी. मैं बिग 4 में, फिर आप कंसल्टिंग में घुस देंगे, अगर कंसल्टिंग में ट्रैवल करना होता है, लेकिन बस दैट डजंट मैटर. तो फिर ठीक है, सही है. तो बहन फिर आप मुझे भेजें, आप ठीक है. घुमाएंगे.
हाँ, और अपने इंटर्नशिप का कोई कांटेक्ट हो ना प्लीज, तो देखिए मुझे उसके जरूर लिए बता आपको दीजिएगा। यूनिफाइड कोर्स बंडल में ट्रांसफर होना, आप हो चुकी हैं? यस, उनकी ईमेल आई थी तो मैंने यूनिफाइड में ट्रांसफर कर दिया था। जब फिर आप लॉग इन करके देखें हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, उसके अंदर ना सब चीजें आएंगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम में कहाँ से बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने शुरू के 4-5 हफ्ते इंटर्नशिप प्रोग्राम खोल के रखा है और सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 6 हफ्ते अच्छा, तक फिर मैं, ठीक है, फिर मैं आपको ऐसा को रीच आउट करती हूँ कि मैंने आप यूनिफाइड में किया तो है। कस्टमर सक्सेस मैनेजर कौन है आपको ये ये मुझे, आपको ईमेल आई आई होगी डोंट कस्टमर नो। सक्सेस की, ये कस्टमर सक्सेस मैनेजर का ये नाम है। सलमान है, दिशान है, कौन है वो ना, आई मीन दे आर डिफरेंट, महताब है, मुश्तबा है, दे आर डिफरेंट पीपल। सो कौन है वो जो आपका, आप उससे सवाल करेंगी, वो आपके लिए बैठा ही आपके सवाल के जवाब देने के लिए। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन है? क्या मुझे ईमेल आएगी? ईमेल आ चुकी होगी, आप ईमेल जाके चेक करें, अच्छा, स्पैम में मैं दोबारा चेक करती हूँ। स्पैम में जाके चेक कीजिए, ठीक है ना, वो कीजिए। अगर अदरवाइज आप एक टिकट वेबसाइट पे जाके ना चैट सपोर्ट में जाएं, बोले भाई मुझे मेरा कस्टमर सक्सेस मैनेजर का बता दें, ये मेरा ईमेल एड्रेस है और हाँ, ये, और मैं इस पोर्टल में, इस कोर्स में रजिस्टर्ड हूँ। डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी में आपको बैठना पड़ेगा अगर आपको कस्टमर सक्सेस मैनेजर की जरूरत है, वो वहीं पर होंगी। एग्जैक्टली। तो आपने अगर ठीक है, ट्रांसफर करा दी, सब कुछ करा दिए, तो आपको मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, मैं जो है वो ईमेल चेक करती हूँ, अगर नहीं होगी तो मैं फिर टिकट रेस करती हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, बाकी थैंक्स। आप जो है ना, ये जो लड़का है जिसने मोहम्मद इरफान, जो मिसिसागा में होता है, जिसका मैं इंटरव्यू की तैयारी करा रहा था, ये 3 यहाँ पर ना, ये इरफान बैठे हुए हैं यहाँ पर, आर यू हियर? इरफान मेरे ख्याल से चला गया शायद। ठीक है, ओके, तो ये जो लड़का है, इसने बड़ी मेहनत की, सब कुछ किया। ये यहाँ से जो है ना, अभी क्योंकि जॉब पे बैठा हुआ है, कहीं जॉब पे बैठा हुआ है, ये वहां से आया है। ये यहाँ ही पर मिसिसागा में रहता है। अगर आप करीब करीब रहती हैं तो आप इससे मिल भी सकते हैं। मैं एजेक्स में हूँ। वो आप तो बिल्कुल अलग कोने में, आप ईस्ट में या वेस्ट में हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इट्स फाइन। आप ना इससे फोन पे बात कर सकती हैं और ठीक आप है। इसको पूछ सकती हैं कि आपने कैसे, क्योंकि ये तो ना, ये तो कंस्ट्रक्शन का काम कर, दीवारें तोड़ता था ये। ओ, आई सी। जी जी, इसने बीएससी किया हुआ है डबल मैथ्स में, ठीक है ना। यूके गया स्टूडेंट वीजे पे, वहाँ एमबीए कर लिया। 10 साल तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वहां से ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। 5 साल तक यहाँ दीवारें तोड़ा था, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। मेरे पास आया, कह रहे मेरे घुटने खत्म हो गए, मैं नहीं, खड़ा नहीं हो सकता, नहीं काम कर सकता। मैंने कहा कोर्स पढ़ो, जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। 3 महीने में इसकी जॉब हो गई। उसने बिल्कुल पागलों की तरह बैठ के पढ़ा। तो आप जब बैठेंगे, थोड़ा टाइम देना कभी कभार इशू हो जाता है, बिकॉज पहले वाली जॉब में भी फाइनेंस की जॉब में एक तो कोई टाइम का वो होता नहीं है, लाइक एग्जॉस्टेड के देयर शुड बी सम टाइम, इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था। लेकिन अब मैंने जॉब क्विट कर दी, तो मैंने कहा जब तक मुझे नई जॉब नहीं मिलती एटलीस्ट आई शुड स्टडी। आप तो पूरी कोशिश करें कि आप उसी जॉब में घुसें जिसमें आपको यही काम करना है, तो फिर आप लगी रहेंगी ना अंदर मार्केट में। अगर आप डेवऑप्स साथ में पढ़ती हैं, सिसऑप्स पढ़ती हैं, फिर तो उसकी नौकरियां तो बहुत ही, फिर तो घर बैठ के काम करें आप। हाँ, आमतौर सो पर वो घरों से बैठ के दैट काम वुड बी वेरी हेल्पफुल कि अगर हाइब्रिड मॉडल जॉब हो कि 2 दिन जाना है, वो 3 दिन आपको घर से कर डेवऑप्स से लें, दैट वुड मिलेगी, बी वो आपको डेवऑप्स से मिलेगी। ओके। आपको डेवऑप्स सिसऑप्स को ना, आप अगर एआई ऑप्स पढ़ती हैं, आप अपने आप को ट्रांसफर करा लें एआई ऑप्स में, वहां पर आपको बहुत अच्छा, यानी कि फिर उसकी जॉब्स घर से बैठ कर है। और वुमेन टेक में बहुत कम है, तो आप उसके अंदर घर से बैठ के काम कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। मेहनत करें, आप अपनी इंटर्नशिप टीम को फिर लीड करें उसमें, चारों डिपार्टमेंट्स में। अगर आप एआई ऑप्स कर रही हैं तो आप लेवल 3 का काम भी कर रही होंगी, लेवल 4 डेवऑप्स में भी काम कर रही होंगी, सिसऑप्स के अंदर भी टीम के साथ काम कर रही होंगी, एआई ऑप्स में। अगर आपके पास टाइम है तो ये 3 महीने फिर आप अच्छी तरह लगा लें ना, उसको अच्छी तरह करके फिर आप मार्केट में उतरें, फिर आप जाएं, फिर तो आपकी बात अलग है। राइट, दैट्स व्हाट यू ओके, शुड डू। फिर आप यहीं ठीक है, पर, आप कैनेडियन सिटीजन है ना, एग्जैक्टली। तो फिर आप यहाँ से बैठ के यूएस के लिए भी काम कर सकती हैं, यूएस कंपनीज के लिए। मुझे अगर ट्रैवल करना तो कोई इशू नहीं है। आई वाज थिंकिंग के थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस के लिए अगर मुझे मिडिल ईस्ट जाके भी रहना पड़ा तो अगर इट्स अगर ओके। मिडिल ईस्ट जाना है तो एआई ऑप्स अगर आपने पढ़ लिया तो वो सऊदी जो है ना आपकी सीट साफ करके बिठाएगा, बोलेगा बहन इधर बैठ। या नो, जस्ट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, और थोड़ा यहाँ की तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बस ये होगा। हाँ वही, वहाँ तो फिर बहुत आपका, तो फिर जो है ना बहुत ख्याल करेंगे आप। या क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो हर काम मुझे घर से बाहर, घर में बाहर, हर जगह खुद ही करना होता है, चाहे किसी भी किस्म की जॉब हो। तो वहां जाके एटलीस्ट ये नहीं करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। हाँ मतलब कि ये बहुत फायदा है। अगर वो करना है तो फिर आपको अपने ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू गो इनटू डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई ऑप्स। ओके, दैट्स ये फाइन। फिर आप फोकस करके पूरा 3 महीने लगाएं, अपने सीवी बनवा लें, सीवी बना के देख लें, ठीक है, ऑप्टिमाइज। जैसे आप सीवी डालेंगे, जैसे शावेज बता रहा था, कॉल्स आने शुरू हो जाएंगी।
ठीक है सही है, लेकिन उससे पहले पहले मुझे जो साइबर शाबिश जो है ना, ये सिक्योरिटी में तो ड्रॉप आउट है यूनिवर्सिटी का। ये तो उसने इसको पाकिस्तान से निकाल दिया था यूनिवर्सिटी में, गिफ्ट यूनिवर्सिटी से, शायद ये वही है। फिर ये यहाँ बैठा है कि नहीं बैठा, फिर इसके बाद ये किसी और जगह चला गया। IOU इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वहां से इसने पॉज किया, डिग्री भी नहीं इसके पास, 1.5 लाख पे बैठा हुआ है, देखिए माशाल्लाह, 1 लाख पे तो बैठा हुआ है, 1.5 पे जा रहा है। ठीक है, तो आप तो यहाँ बैठकर, क्योंकि डिग्री डजंट मैटर, डिग्री मैटर करती है बाहर जाने के लिए, डिग्री की जरूरत है बाहर जाने के लिए। तो RQF लेवल 5 का जो लेवल 6 का डिप्लोमा आप कर रही होंगी, उसमें तो आप वैसे ही बैचलर्स के बराबर आपकी क्वालिफिकेशन हो गई ना। हम वैसे भी फाइनेंस में आई हैव सीन, जैसे ही आप 6 फिगर में आते हैं वो इतना सारा काम होता है कि वो लाइक आई डोंट नो हु इज हु, खत्म हो रहा है, इट्स अ डाइंग डिसिप्लिन, क्योंकि टेक्नोलॉजी खा रही है उसको। ठीक है ना, तो कुछ अरसे में फाइनेंस का नामो निशान नहीं होगा। PwC बहुत परेशान, इसलिए वो लोग अपने अपने बंदों को ट्रेन करके ना मल्टीपल चीजों में बिग 4 कंसल्टिंग लगा रहे हैं। या बिकॉज अभी मेरा इंटरव्यू था मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो जब मैंने उनसे पूछा कि इट्स ओके लेकिन फाइनेंस का कोई रोल नहीं होगा ICS कंट्रोल और उस गवर्नेंस और रिस्क साइड पे, तो उसने बोला नहीं नहीं ये नहीं होगा। तो आई डोंट इवन थिंक दे आर इवन थिंकिंग इन दैट वे कि अगर बिजली बंद हो गई और अगर मैन्युफैक्चरिंग की टेबल कुछ बंद हो गया तो क्या होगा, करेंगे। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा है, ICAEW जो इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, उन्होंने कहा है दुनिया की 2 बड़ी बॉडीज हैं, एक अमेरिका में CPA AICPA और एक ICW, ये दुनिया की 2 बड़ी हैं, बाकी रीजनल और भी मिलेंगे आप, ACCA भी है जो ग्लोबल है। सब ने कहा है कि भाई अकाउंटिंग इज डाइंग, इट्स, ये मैं नहीं कह रहा, पिछले 3-4 साल से कह रहे हैं, और वो चीज टेक्नोलॉजी खा के खत्म कर देगी, सब बाहर बैठ जाएंगे। तो अभी तो परेशान है वो लोग, वो कुछ ना कुछ दूसरे तरीके निकाल रहे हैं, किसी तरीके से उनको बिठाएं, कहाँ एडजस्ट करेंगे वो टेक्नोलॉजी। चैट GPT जब आया 300 मिलियन जॉब्स मिट गई मार्केट से, कंटेंट राइटर खत्म, रेज्यूमे डेवलपर वाला खत्म, मार्केटिंग वालों का काम खत्म, जो ब्लॉग्स लिखते थे उनका काम खत्म, तो सबके काम एक एक करके जाते चले गए ना। अब 4-10 बंदे बैठते थे, एक बंदा बैठ के काम करता है, वो सिर्फ चैट GPT में प्रॉम्प्ट टाइप करता है, वो सब लिख लेता है। ठीक है, तो ओपन AI एक चीज है, बार्ड एक अलग बला है गूगल का, इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जो AWS बेडरॉक है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये 3 बड़ी कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ओपन AI, बार्ड, गूगल का बार्ड, और AWS बेडरॉक और भी खतरनाक चीज है। ठीक है, क्योंकि उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा डेटा है, तो ऑटोमेशन मार के ना वो लोग 1 बिलियन नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है ना, 1 बिलियन नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और 1 बिलियन जॉब्स मिट रही हैं। ठीक है ना, वहां से मिटेंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नई जॉब्स के लिए नए बंदे चाहिए। ऐसा नहीं है कि AI हर बंदे को रिप्लेस कर देगी, AI रिपीटेटिव काम को रिप्लेस करेगी, आपका काम वही हो, आप बैठ के काम करेंगी। AI इस लेवल पे नहीं है कि कंसल्टिंग दे सके, अभी नहीं, अभी वो बुकिश आंसर देता है, लेकिन ना वो इस लेवल पे जाने के लिए उसको बहुत टाइम चाहिए, 25-30 ईयर्स चाहिए, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी वो लोग एकदम से कोई चीज लाते हैं ना, तो मार्केट में उसको पहले अच्छी तरीके से फैलाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, ये जो यूट्यूब पे बैठे होते हैं इधर उधर, वो उसको ना कैपिटलाइज करते हैं, जी ये आ गया, मेरी किताब ले लें, जी ये आ गया, मेरी वीडियो देख लें, जी ये आ गया, ये कर लें, उसमें सबको लगा देते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसे कमा लेते हैं। और लोग जो है ना ख्वार होते रहते हैं, वो कहते हैं यार मैंने डेटा साइंस का बड़ा नाम था, सब सारे डेटा साइंस पढ़ के बैठ गए, जॉब्स ही नहीं मार्केट में, क्योंकि जॉब्स कभी थी ही नहीं मार्केट। ठीक है, जॉब्स मार्केट में डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI, बिग डेटा, इनकी जॉब्स हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी इनकी जॉब्स हैं सारी ना, इमर्जिंग स्काडा हो गया, ICS हो गया, इनकी जॉब्स हैं, ब्लॉकचेन हो गया, इनकी हैं, पता नहीं कहाँ लगा देते हैं वो सबको। तो ये एक बड़ा कॉमन वो है ना, फड, फेयर, अनसर्टेनिटी, डाउट फैलाओ, सबको लगा दो उसके ऊपर, दैट्स द प्रॉब्लम। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप जाएं, अब मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से। ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जी मोहम्मद इस्माइल, बोलो भाई, बोलो मोहम्मद इस्माइल। अच्छा, हुज़ैफा कुरैशी, बोलिए, हुज़ैफा कुरैशी। अच्छा, उवैस सरवर, बोले। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी उवैस, रुक जाओ जी, हुज़ैफा बोलो। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बोले। वालेकुम सलाम।
सर जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन था, एक डाउट है और वो मैंने क्लियर करना था। बोलिए। तो वो ये स्टडी टाइम टेबल के हवाले से है ना, असल में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ये जो लेवल 5 या लेवल 6 है ना, ये लर्न करने का ना। तो इसमें ज़रा सी कंफ्यूजन है टाइमिंग के हवाले से, तो वो मैंने आपसे क्लियर करनी थी। क्योंकि ये जो लेवल 5 है ना, तो इसमें जो ये CCSD है, जो एक्चुअली लेवल 3 जो है, तो ये 80 आवर्स का ना मंथली ओवरऑल। और अगर आप लेवल 6 में जाएँ ना, सॉरी, अगर आप लेवल 6 में जाएँ तो ये 80 आवर्स का है, और अगर आप लेवल 5 में जाएँ तो ये 121 आवर्स का है। तो ये मुझे कन्फ्यूजन है कि ये मतलब कम कैसे हो गया है? मैं 8 मंथ की बात कर रहा हूँ। देखो, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी जो है ना, उसके 900 घंटे, ये मैंने बहुत दफा समझाया है, तुम लोग देखते नहीं हो। उसके जो टोटल अच्छा। बनते हैं वो असल में 1100। सर मैं न्यू जी। न्यू हो तो फिर इसके बाद जो नई वीडियोस आ रही हैं फिर वो देख लेना। मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1100 घंटे डिप्लोमा इन जी, क्लाउड साइबर। 1100 घंटों में से तुम ना 300 घंटे हटा दो, क्योंकि वो आइल्स के। आइल्स कोई भी 300 जी, घंटे 300 घंटे के लिए जी, पड़ेगा तो फिर ना तुम्हें BBC में बैठना पड़ेगा, नहीं तो इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी जी, ना। ठीक है ना। जी, जी, तुम फिर 300 घंटे, अगर अगर 30 घंटे भी अगर शबाज शरीफ या नवाज शरीफ पढ़ लेता तो इंग्लिश में सही बात कर लेते, जी, राइट। ठीक है जी, ना। जी, बिल्कुल। होता है कि माई जी, आवर फ्रेंडशिप इज स्वीटर देन हनी। ठीक है ना। जी, जी, फ्रेंड्स फॉर एवर, वो इस तरह की बातें नहीं कर रहा। ये भी पूरा सेंटेंस है जी, भी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो जी, जो पीछे देख के बात कर रहा था वो भी नहीं करता, तो वो एक अलग जी, चीज है। बट मैं तुम्हें जी, तो वो 300 घंटे हटा दो, बचे 900 घंटे। 900 घंटों में से जो कोर घंटे हैं जिसमें तुमने जी, फोकस करना है, जिसमें तुम्हें वो करना है, और ये मैंने वीडियो में बनाया है। मैं वीडियो हो सकता है पाकिस्तान आने के बाद उसको रिलीज करूँ। ये क्या है, हाउ टू स्टडी यूनिफाइड कोर्स सही, के अंदर एक पूरा वीडियो कोर्स है, उसके अंदर एक नई वीडियो आने वाली है। उसमें मैंने बताया कि तुम्हें पढ़ना कैसे। उसके अंदर मैंने सब सही, चीजें बता दी हैं, समझा दी हैं। तो उसमें मैथ 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 के कोर्स को तुमने ब्रीज कर देना। तो तुम 900 घंटे में सही, से 150 200 घंटे निकाल दो, कितने बचे? 700 घंटे, राइट। सही, ठीक है ना, क्योंकि सही। वो मैथ के जो 4 कोर्सेज है ना, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, जी, ये वो सब तुम जल्दी निकाल दोगे। उसको तुम सिर्फ जी, देखोगे, उसका कोई एग्जाम इतना टफ, उसके मैंने एग्जाम रखा ही नहीं। सही, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता सही, हूँ कि सब जी, बच्चे पास करें। मैथ्स इसलिए रखी है कि तुम लोगों को समझ आ जाए, लेकिन मैथ्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैथ्स समझाने के सही, लिए कहीं कहीं बैठो तो बिल्कुल ऐसे वेले नहीं बैठो यार, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और यार वो जी, कंचा फेंकते हैं, हो सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, वो गांव में जी, सब जी, करते हैं ना, तो वो वाली कहानी नहीं होती। बोले यार प्रोबेबिलिटी सही, क्या होती है, उसको पूरे तुम बता सको ना सब चीजें। कैलकुलस सही, क्या होता है, बोले यार कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलेटर का छोटा नाम कैलकुलस है। ये भी तुम जरा थोड़ा सा तैयार हो ना इसमें बोलने के लिए। ये नहीं होता यार, जी, जी, कैलकुलेटर पता है कि क्या होता है। ठीक है ना, स्टैट्स क्या होता है तुम्हें जी, पता है। इसलिए वो तो, जी, वो 900 में से 200 घंटे निकालो, बचे 700 घंटे। 700 घंटों जी, में जो है ना, तुम्हारे जो की घंटे हैं, वो जो तुम्हें जो वाकई में जिसमें तुमने सुनना है करना है, उसमें से 50 घंटे का कोर्स आता है CSSP। वो तुमने सिर्फ सुनना है। ठीक है, सही, वो सुनने वाला है, उस पर कोई वो नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत इंटरव्यू की प्रिपरेशन है तुम्हारी छुपी हुई है उसके अंदर ना, तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद सही, पे तुम्हारी पाइथन है। वो पाइथन का जो पूरा कोर्स है, पाइथन उसके साथ ऑटोमेशन सब, वो तुम्हें जल्दी जल्दी करना है। वो 100 घंटे का बनता है तकरीबन। सही, ठीक है ना। सही, लिनक्स का कोर्स है, वो भी छोटा है, वो भी तुम कर लोगे। रैल का कोर्स है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे कोर्सेज छोटे छोटे हैं। तो वो 1100 में सही, से हमारे जो कोर घंटे हैं वो 500 के घंटे बन, जो कोर है, जिस पे तुम्हें तवज्जो देनी है, और वो मैंने बताया है उस वीडियो में। देखो, इस पे तुमने जोर देना सही, है, इसी में से तुम्हारे एग्जाम्स ज्यादा होंगे। जी, जी, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा जी, डिप्लोमा क्लाउड सर्विस। अब तुम लेते हो डेवऑप्स, ले लेते हो, बोले यार डेवऑप्स, डेवऑप्स के कोर जी, घंटे 200 घंटे जी, जी, बस। तो ये बन जाए 500 घंटे, और 200 घंटे कितना होगा? 700 घंटे। ठीक है, जी, 500। अब जी, किसी ने कहा मैं सिसॉप्स भी ले रहा हूँ, सिसॉप्स के मिला के 150 घंटे, जी, जिसमें मैंने 50 रिलीज कर दिए हैं, बाकियों को मैं उसको ना एक अलग तरीके से उसकी लैब्स बना के वो कर रहा हूँ। वो तुम्हें मिल जाएगा, वो बड़ा जबरदस्त कोर्स उसका है। ठीक है ना। तो वो अच्छा, मेरे तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास बचे ये 700, 700 और 100, 150, तुम 200 मिला दो, 7 8 900 हो गए, 900 घंटे हो गए। ठीक है ना। जी, तुम्हारे कोर घंटे, अगर तुम AI ऑप्स मिला दो, AI ऑप्स में जितने कोर्सेज है तुम देख लो, उनके कोई टफ एग्जाम जी, नहीं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लाउड के ऊपर वो है, वो तुम रखो अपने पास 200 घंटे। तो एसेंशियली तुम्हारे पास 1100 घंटे हैं, अगर तुम लेवल 6 पढ़ते हो।
RQF लेवल 6। जी 1100 घंटे जी का मतलब हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सब कुछ करूं, ठीक है ना, जी उसके ऊपर तो मैं जरा देखता हूँ सब कैलकुलेटर खोल के। सही तो 1100 का मतलब हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मतलब कि ना उसके ऊपर 12 महीने के ऊपर ना, तुम्हारे जी महीने जी के बनते हैं जो घंटे हैं वो 91 आवर्स बनते हैं। अच्छा, इस 91 सही आवर्स में से भी बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको तुमने सिर्फ सुनना है। अब तुम बस में जा रहे हो, ट्रेन सही में जा रहे हो, टैक्सी में जा रहे हो, उबर में जा रहे हो, जिसमें सही भी जा रहे सही हो, है ना, सही पे बैठ के जा रहे हो, जिस पे बैठ के जा रहे हो, पता नहीं ना यार किसमें तुम बैठ के सही जाते हो, हम ठीक है। तो सही वहाँ तुम जो वट एवर यू डूइंग, उसमें से 90 घंटे में से तुम 30 घंटे ऐसे जो तुम सुनोगे खाली, सही बाकी बचे 60 घंटे। तो तुम्हें वीक मंथ में 60 घंटे पढ़ना है। 60 घंटे का मतलब ये हुआ कि तुम 20 20 20 घंटे, ये वो घंटे हैं वीक में तुम 20 घंटे फोकस करके पढ़ोगे। यानी कि इस तरह से सही तुम्हें 15 से 20 घंटे तुम्हारा फोकस वाले आवर्स होने चाहिए। तो क्या तुम हफ्ते में 15 से 20 घंटे पढ़ सकते हो? सर, मैंने तो इस कोर्स के लिए, असल में बात ऐसी है कि मैं रेगुलर स्टूडेंट था कंप्यूटर साइंस में ना, तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब मैं तो ऐसे बहुत बोलूँ कि सारे मेरे मज़ा ही पास नहीं आ रहा रेगुलर था मैं। स्टूडेंट्स आए, उन्होंने छोड़ दिया डिग्री ना, जी क्या कुछ पढ़ाते ही नहीं, कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल वो ऐसे मेरे सही है। पास, हाँ, तो तुम नए नहीं हो। वो जो शाबेज है, जिसके 1.5 लाख की जी जॉब का वो हुआ है जी अभी, जी इसकी जी जी जॉब, पहली जॉब 1 लाख की लगी थी, 75,000 1 लाख की लगी जी थी। मुझसे बात जी करो, तुमको बताएगा। इससे पहले और भी दूसरा एक दूध वाले का बच्चा है, वो यूई चला गया, पता नहीं है वो तो जी जी बिल्कुल उसने कहा भाई मलाई जम गई, अब तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे से मैं दूध जी पका रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मलाई जम गई, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो तो सही चला गया। सही उसके वालिदैन ने मुझसे बात की थी, उनको उर्दू भी नहीं आती, ठीक है ना, पंजाब में कहीं अच्छा जी 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 ठीक है, जी 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 इंटरव्यू भी रखा हुआ है। तो वो लड़का तो ऐसे सेट हुआ कि भाई उसने बीबीए किया हुआ था फाइनेंस में, अच्छा ठीक। उसके अच्छा वालिद ने कहा कि मैंने दूध बेच बेच के अपने बच्चे को पढ़ाया, नौकरी नहीं, आपके पास यहाँ पढ़ा, सही नौकरी हो गई। उसने बड़े पैसे जोड़े, जोड़ जोड़ के पैसे सही उसने पूरा एनुअल पे कोर्स लिया था उसने, क्योंकि उसने कहा कि मुझे जल्दी सही जल्दी कोर्स खत्म करना है। 3 महीने उसने कोर्स, पूरा साल का कोर्स 3 महीने में पढ़ा, निकल गया वो। सही तो जो कोर घंटे हैं तुम्हारे, वो तुमने अगर तुमने एआई ऑप्स, अगर तुमने बैचलर्स कर रहे थे, अगर तुम एआई ऑप्स करते, एआई ऑप्स जी आरक्यू लेवल 6 का डिप्लोमा है, यानी बैचलर्स जी कर जी जी बिल्कुल लिया, तो तुम जाके जॉब, ना सिर्फ तुम बाहर एडमिशन ले सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, जी बल्कि इसके अलावा तुम जो है ना, जी जॉब भी पकड़ सकते हो बिल्कुल इमिग्रेशन में, सर, ऐसा ही है असल में। है जी ना। जी असल में सर ऐसा है कि वालिदैन के लिए तो उनकी बस एक किस्म की खुशी के लिए मैंने प्राइवेट एडमिशन ले लिया कि बस उन्हें पता हो कि मेरा बेटा पढ़ रहा है ना। उन्हें असल में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया नहीं है। तो तो ये जो है, तुम तो लोग ये सब मैं काम कहना करते चाहता हो, हूँ कि वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा शरीफ है, मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद जैसे जी ऊपर जी नीचे होता है और घर आ जाता है, बोलता है नमाज पढ़ ली, और उसको माँ बाप जी बस जी कितना अच्छा बच्चा है, सर पे हाथ फेरते हैं, टोपी पहनी हुई, तो कितना अच्छा बच्चा है, नमाज पढ़ ली, जी नमाज जी जी नमाज पढ़ाने जी वाले को बिल्कुल नहीं, क्या नमाज पढ़ा रहा है वो, ठीक है। तो पढ़ने वाली की तो बिल्कुल फिर बात अलग है ना। तो ये तो एक अलग बिल्कुल मसला सर है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर जी सकता। बिल्कुल पॉइंट इसके तुम्हें अगर वो मेहनत अ, करेगी कर सकते। अच्छा, और सर असल में एक बात और कि मैं असल में सिर्फ ये मैंने अपने माइंड सेट में नहीं बैठाया हुआ ना, है मुश्किल लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपने खुद ही भी बोला है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। तो मेरा असल में प्लानिंग ये है कि एआई ऑप्स करके जो लेवल 6 है, तो उनका जो वो जो एग्जाम्स वगैरह होता है कि जो भी वो डिग्री वगैरह मिल जाती है, तो मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ से तो डिग्री छोड़ दी, और जैसे कि आपने बोला भी है कि बाहर जाने के लिए आपको डिग्री की जरूरत होगी, इसी इंटरव्यू में आप बोल रहे थे, इसी वीडियो में। तो ये है कि मैं कहता हूँ कि वो हो जाए तो ऑटोमेटिकली मैं जॉब के करने के काबिल भी हो जाऊंगा, लेकिन ये है कि मुझे डिग्री भी मिल जाएगी। तो असल में मैंने मेन फोकस उसको ही रखा हुआ है। हाँ ठीक है, मतलब कि यू कैन डू इट, हम्म, कर सकोगे, जी ठीक है। आई मीन जी अपनी मेहनत करो, अपने फोकस करो, इंशाल्लाह काम पे, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी देगा, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। जी उवैस सरवर साहब बोलिए। मोहम्मद इस्माइल आपको मैंने ओके अनम्यूट किया था, बोलें क्या सवाल है आप, मोहम्मद इस्माइल। अच्छा उवैस आप बात करें, मोहम्मद इस्माइल का पता नहीं है, जी बोलें। उवैस सरवर आप बोलिए। अस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मेरा ये वही मैंने ऐप्स आपका स्टार्ट कर दिया, मैंने ले लिया था। तो इतने आपने डिविडेंड तो बता दी, लेकिन जब एक साथ पैरेलल लेके चलना है या एक और एक्चुअल मेरा चल रहा है, उसका फंडामेंटल तक कंप्लीट होने वाला है उसका ना।
और CISP भी मेरे साथ साथ चल रहा है। तो ये पूछना ये था कि मतलब साथ साथ मैं डेवऑप्स से लेके चलूँ, सिसऑप्स भी और AI भी डेली के बेसिस पे क्या करना है? कितना टाइम है तुम्हारे पास? अब पूरा दिन है। अगर पूरे दिन है ना तो तुम 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे या 1.5 घंटा तुम डेवऑप्स उस पे क्लाउड पे लगाओगे, ठीक है ना, लेवल 3 पे। लेवल 4 पे 1.5 घंटा लगाओगे, लेवल 5 पे लेवल डेवऑप्स पे 1.5 घंटा लगाओगे, सिसऑप्स पे 1.5 घंटा लगाओगे, और तुम 2 महीने 3 महीने के बाद AI ऑप्स शुरू कर दोगे। ठीक है, सही है ना? क्या मतलब? थोड़ी सी वीडियो का इंतजार करो, एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैंने सब अच्छा एक्सप्लेन अच्छा। किया, ठीक है ना? वो वीडियो आने ठीक। वाली है, मैं इसकी एडिटिंग वगैरह करवा रहा हूँ, और जैसे हो जाती अच्छा है तो मिल जाएगी। उसमें मैंने सब बता दिया है, AI ठीक। ऑप्स वाला कैसे पढ़े, ब्लॉकचेन ऑप्स वाला कैसे पढ़े, ऑफेंसिव अच्छा ऑप्स वाला क्या पढ़े, डेवऑप्स का डिप्लोमा जो कर रहा है वो क्या करे, सिसऑप्स का डिप्लोमा क्या करे वो क्या करे, किसी को अगर मिडिल ईस्ट जाना है तो वो क्या पढ़े, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ना तमाम जॉब्स ऑटोमेशन पे रिप्लेस हो रही है, लेकिन अरब इतना तो नहीं पढ़ सके ना, अरब मशीनें ले आए तो स्वीपर की जॉब इधर उधर की सब खत्म हो गई, ठीक है ना, खत्म हो रही हो, ठीक है ना, नौकरों को ले आए इधर उधर से कर दिए काम, लेकिन अब उनको ऑटोमेशन लेकर आनी है, ऑटोमेशन जो आएगी वो नेक्स्ट लेवल का काम है, ये अरबों को अभी तक नहीं आता, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो दूसरी चीजों में, अयाशियों में, दूसरी चीजों में लगे हुए हैं। तो तुम लोग के पास टाइम है कि तुम लोग उसको पढ़ के जल्दी जल्दी निकल सकते हो, लेकिन वहाँ हमेशा नहीं रहना, मिडल ईस्ट हमेशा रहने की जगह नहीं, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो तुम्हें वहां से यूरोप की तरफ, G20 की तरफ, या G20 तरफ की ममालिक की तरफ निकलो, यानी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ना, वहां तुम्हारे पास चांसेस अच्छे हैं सेटल होने के, सब काम करने के। जिसको जाना है सऊदीया में, जिसके पास ऑलरेडी अमेरिकन या ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो वो बैठ के वहाँ काम कर सकता है, उसको बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। ऐसे मेरे पास अमेरिका के लोग हैं जिनको मैं जब भी गाइड करना है, उन्होंने चीज़ें ली हैं कि यार तुमको कैसे पढ़ना है, अगर 6 महीने में अगर तुमने टारगेट बनाना है कि अगले 6 महीने में तुम वहाँ पर बैठे हुए हो, वहाँ पर काम कर रहे हो, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तुमने अपने आप को फोकस करना है कि तुम्हारे पास पूरा दिन है, पूरा टाइम है, तो बोलो यार मैं सुबह शाम ये बैठ के पढ़ूंगा, ये करूंगा, इस तरह से करूंगा, दैट्स इट। वो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर, तुम्हें डिग्री, वो तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी, हो सकता है वो कमिंग ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आए, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। जब तक तुम क्या करो, बोलो यार मैं लेवल 3 के सारे कोर्सेज करता हुआ आ रहा हूँ, लेवल 4 के मैंने, लेवल 3 के कोर्सेज मैं ना अगले एक हफ्ते तक सारे खत्म करने हैं, फिर मैं लेवल 4 पे चलाऊंगा, फिर मैं पहले डिप्लोमेंट क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ और डेवऑप्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये मैं इसको पढ़ूंगा, फिर मैं सिसऑप्स और वो इस तरह से लेके चलूंगा, ठीक है। ये तुम कर सकते हो, अभी तुम ये करो फिलहाल, जब तक अच्छा। जी जी, बकरीद की छुट्टियां वो, और जैसे कि क्या पूछ रहा था मैं? एग्जाम दोगे तुम AI ऑप्स का? जी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर होते हो तुम? मैं कराची में। अच्छा, कराची में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम फिर मिलने आ जाना मुझसे, मैं ऑफिस में जी मैं हूँ। आपके ऑफिस चक्कर भी लगा चुका हूँ। कौन हो भाई तुम? मुझे मुझसे मिले हो? नहीं, आपसे मुलाकात नहीं, आपके लोगों से मिला था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो अब मुलाकात मुझसे भी होगी, चलो चलिए ठीक है, ठीक है। तो चलो। आप कब आ रहे हैं? मैं बस इंशाल्लाह मंडे की सुबह पाकिस्तान में हूँ, अच्छा, ईद करने आ रहे हैं आप? इंशाल्लाह। कब तक, कितने दिन के लिए आ रहे हैं? 3 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं उम्रे के लिए चला जाऊँ। चलिए ठीक है, तो मुलाकात हो जाएगी आपसे, पॉसिबल है? हाँ हाँ, दावत होगी वहां पर। हम अच्छा। एक ऊंट ज़िबा कर रहे हैं, उसका इतना गोश होगा भाई, बिठाओ सबको, बिठाओ खिलाओ यार सबको, ठीक है। तो आ जाओ, तुम सब लोग आ जाओ, जो जिसको जो आना है आके बैठ के खाए कौन से इंशाल्लाह। दिन में? वैसे मिलना है, खाना वाना तो कुर्बानी। थर्सडे। आई विल लेट यू नो, ओके ओके ओके। बी ठीक है। अनाउंस, इट विल बी अनाउंस। ठीक है। जी, ठीक है। हाशिर अहमद बोलिए, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। मैं अभी डेवऑप्स का कोर्स ले रहा था, अभी मेरा दूसरा मंथ चल रहा है तकरीबन। डेवऑप्स का काफ़ी कंप्लीट हो गया, मैं अभी जीरा तक पहुंच गया हूँ, कंप्लीट अच्छी हो बात। जाएगा। तो मेरा आगे था मास्टर्स के लिए जाने का। अब ये सोच रहा हूँ या तो यूके जाऊँ या जर्मनी जाना चाहिए। जर्मनी फ्री है, यूके में है थोड़ा पेमेंट वगैरह करनी लगेगी वहाँ पर। दोनों जगहें अच्छी हैं, जर्मनी भी अच्छा है, यूके भी अच्छा है। यूके सिलसिले में अच्छा है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, जर्मनी लेकिन पैसे लगते हैं। जर्मनी इस सिलसिले में अच्छा है कि एजुकेशन फ्री है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो दिखानी पड़ती है, वही पैसे तुम्हें, लेकिन वो ब्लॉक अकाउंट में वापस कर देते हैं। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें AI ऑप्स करना पड़ेगा, या डेवऑप्स तो सिसऑप्स, AI मेरा इरादा डेवऑप्स था कि मैं सिसऑप्स के आपकी साथ यूनिवर्सिटी तुम का जॉब्स। वहीं पर आके कर लूंगा आपके पास, यूके सॉरी, में। मेरा इरादा था कि आपके पास आके यूनिवर्सिटी में आपके
कर लूंगा वहाँ पे। मेरे पास भी आके काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखो ये लड़के सारे जो, अभी एक लड़का था जिससे मेरी बात हो रही थी, इस मीटिंग से पहले एक मीटिंग थी, तो उसमें वो लड़का सज्जाद अहमद, जिसको मैंने डांटा था कि यार तुम्हारी इंग्लिश सही नहीं है, वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू देकर आ गया, ठीक है, डेवऑप्स के ऊपर। तो अल्लाह से दुआ है कि इसकी जॉब हो जाए, क्योंकि उसने अभी अभी अपना मास्टर्स खत्म किया था और PSW उसको मिला था। पाकिस्तान से मास्टर्स करके गया था, एक और मास्टर्स कर लिया यूके में जाकर, ठीक है। अभी फिश एंड चिप्स की दुकान पे काम करता है। तो जब मेरे साथ मीटिंग ज्वाइन की उसने, इंटर्नशिप की टीम को लीड कर रहा है वहां पर ना, वन ऑफ द इंजीनियर्स में से। तो उसने कहा कि फैसल भाई, बात ऐसे जैसे पंजाबी थिक एक्सेंट होता है ना, इस तरह वो उर्दू में बात करता है। तो मैंने उसको बोला यार इंग्लिश भी इसी तरह बोलता है। तो मैंने कहा तुम अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, अपना लहजा सही करो ना। तो लेकिन वो माशाल्लाह, अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला ने उसकी मदद की और वो निकल गया, क्योंकि इखलास से मेहनत कर रहा है। तो उसने कहा मेरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू हो गया। मैंने कहा तुमसे 1.5 घंटे उन्होंने बात की है? कह रहे हाँ, उससे 1.5 घंटा बात की है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। मेरा जॉब तो है नहीं, मैं पूरा दिन बस यही डेवऑप्स और सिर्फ पढ़ता रहता हूँ। उसमें सिर्फ आपको नहीं, साइबर सिक्योरिटी वाला। तो नहीं, अभी सिसऑप्स अलग है। सिसऑप्स का RQF जिसमें ना आर्किटेक्चर और दूसरी चीजें हैं। अगर तुम्हें बाहर मास्टर्स करने जाना है तो तुम AI ऑप्स पढ़ो, अच्छी तरह अपने को तैयार करो, फुल करो, अपने पूरे इंटर्नशिप में टाइम लगा के सब चीजें करो, देन गो फॉर इट। सर दूसरा एक सवाल ये था, मेरा छोटा भाई है, उसको है शौक उसमें ऑटोमोटिव में जाने का। तो अभी वो अप्लाई कर रहा था, तो अभी इसका गैप था तो इसलिए हुआ नहीं बाहर कहीं। मैंने उसको कहा था कि ये डिप्लोमा कर लो तुम RQ6 का, तो उसके बाद तुम वहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दो ऑटोमोटिव में। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज आ रही है वहाँ पे वो उनका प्रीरिक्विजिट है कि आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में किया हो, तो उसकी ये तो अब उनकी, ये तो उनका, होगा देखो नहीं। ऑटोमोटिव में डिग्री कर लेने से भी उसको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि वो जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो ये पढ़ा रही हैं, लेकिन जो गाड़ियां बन रही हैं वो बिल्कुल टोटली AI पे, दूसरी चीजों पे चल रही हैं, राइट। तो अगर उसको करना भी है काम, तो उसको बोलो कि भाई जर्मनी अगर जाना है, कहीं भी जाना है, तो AI ऑप्स पढ़ के वहाँ मास्टर्स के लिए, ऐसे मास्टर्स के लिए अप्लाई करे कि जिनमें घुस सके। फिर वो जो है ना उसमें कर सकेगा। ऑटोमोटिव में काम कर रहा होगा लेकिन उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग उसकी बेस पर अप्लाई कर। इंजीनियरिंग स्कूल जो है ना वो BEng मांगते हैं, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, राइट। तो वो MEng में देते हैं। जी जी। हमने इंजीनियरिंग स्कूल नहीं बनाया है, हमारे पास BSc और MSc प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स अभी एक्रेडिटेड हो गए। अब हम BSc और MSc की एक्रेडिटेशन करो, दैट्स इट, ठीक है, देन वी आर कंप्लीट। ठीक है, लास्ट इंजीनियरिंग स्कूल खोलने का इरादा नहीं है, ठीक है ना। इतने हर काम में सारे नहीं कर सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल यार, मर जाऊंगा यार ठीक है, नॉट पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी उसने भी अब पढ़ना शुरू करना है, तो अभी उसके पास 1 साल है, तो मैं अगर डेवऑप्स का तो मैंने लिया हुआ है, तो हम क्या दोनों एक पे पढ़ सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। देखो तुम्हें खुद फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त होता है कि जब तुम खुद पढ़ो और तुम अपने CV भी बनवाओ, अपने सर्टिफिकेट भी बनवाओ, अपना एग्जाम भी पास करो, तो फायदा है ना, ठीक है ना। अगर वैसे पढ़ लेगा तुमसे, एक तो वो चोरी है, हम अलाउड नहीं करते, ठीक है ना। दूसरा नहीं, मतलब तुमने आप ये कर लिया, बता रहे हैं अगर कि तुम अगर पकड़े आप गए, अगर तुम पकड़े गए तुम्हें बैन कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए, तुम्हारे सारे पैसे जाया हो जाए, ठीक है। जी, तो इसलिए मैं आपसे कोई पूछ रहा था बताओगे कि कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेल्फ, ठीक है। तो वो खुद पैसे जमा ओके करे, खुद मेहनत करे, सब कुछ करे और फिर आगे पढ़ने के लिए जाए, ठीक है ना। ये चीज करना, देखो वो तुम्हारी कबर में नहीं जाएगा, तुम उसकी कबर में नहीं जाओगे, दोनों आर अकाउंटेबल फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। हाँ ये जरूर है ठीक। कि अगर वो छुप के तुमसे पढ़ता है, सब कुछ करता है, तो हम उसको कुछ नहीं देंगे, उसके पास कुछ सर्टिफिकेट। देखो क्या तो मैं ये उसका चीज यहाँ अलग पर है, लैपटॉप इंटर्नशिप में बैठना, इंटर्नशिप में काम सीखना, CV में लिखवाना, CV में सब चीजें लिखी हुई हैं, वो उसकी जाती है ना, तो फिर उससे फर्क पड़ता है। अगर उसका CV नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हारा CV सब कुछ है, तुम चले आओगे, तुमने RQF एग्जाम भी पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, तुम्हारी सर्टिफिकेशन भी आ गई, सब कुछ आ गया, तुम आगे निकल जाओगे। वो उसने कब सब काम, उसको बोलेगा मुझे सब काम आता है, लेकिन उसको सबूत नहीं कुछ दिखाने के, तो फायदा क्या हुआ पढ़ने का, क्या फायदा। अच्छा सर, अभी तो मैं एग्जाम ना दूं किसी भी उसका लेवल का, जब मास्टर तो मैंने करना है उसमें, तो मैं डायरेक्ट फिर उसका अगर 7 तुमने का। बैचलर्स किया हुआ है तो तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं। बैचलर्स किया हुआ है तुमने, जी जी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। फिर जरूरत नहीं RQF लेवल 6 एग्जाम देने की। अगर ऐसे ही करना है, कोई गैप फुलफिल करना है, तो ठीक है, गलत बात है, ठीक है, कि यार मेरे एजुकेशन में कोई गैप नहीं रहा है, मैंने काम कर लिया, जो भी कर लिया, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर वो ऑलरेडी तुम्हारे बैचलर्स की डिग्री, तो फिर क्या जरूरत है, क्यों तुम 250 पाउंड लगा रहे हो, 250 पाउंड फीस RQF लेवल 6 के एग्जाम की,
तुम क्यों 250 पाउंड लगा? 250 पाउंड बचा लो, अभी तो 250 पाउंड यानी पाकिस्तान में कहाँ चलेंगे? आरक्यू लेवल 7 करूँ मैं? आरक्यूएफ लेवल 7 में तुम मास्टर्स में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें एग्जाम्पशन चाहिए वहां पर कि यार मैं 12,000 पाउंड की जगह जो है ना मैं आखिरी का कोर्स करना है, तो आरक्यूएफ लेवल 7 के तुम 5 ट्रैक्स उठा लो। डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई, क्या नाम है, इसके बाद ब्लॉकचेन हो गया और बिग डेटा हो गया। 5 ट्रैक्स पकड़ लिए तुमने, तो आरक्यूएफ लेवल 7 का डिप्लोमा है। आरक्यूएफ में 2, हमारे पास 7 में 2 है, एक सर्टिफिकेट है और एक डिप्लोमा है। डिप्लोमा कर लिया तो तुम्हारी सारी डिग्री एग्जाम्प्ट हो गई। तो मैं 12,000 पाउंड की जगह जो है ना, कितने पैसे देने होंगे बताता हूँ अभी सबक। इस तरह बहुत कम हो जाता है, वो फीस बिल्कुल आधी हो जाती है। देखिए मैं तुम्हें एस्टिमेशन बता रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ 3,400 देने पड़ेंगे। 3,000, साढ़े 3,000 पाउंड खत्म। तो 12,000 पाउंड की जगह यहीं से कर कर आऊंगा। हाँ, बस सिर्फ ये जमा करानी होगी, बस डेसिटेशन और वो खत्म, क्योंकि तुम्हारा आरकेएफ, लेकिन फिर तुम्हें एग्जाम भी देना पड़ेगा। आरकेएफ लेवल 7 का एग्जाम भी दोगे एजुकॉल का ना, तुम दिखाओगे एजुकॉल का मैंने एग्जाम भी दे दिया, इसकी एग्जामेशन मिल गई, सब कुछ हो गया, और अब मैं ये सिर्फ करने जा रहा हूँ। समझ आया? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। जी, इसके बाद और कौन है? जैनुल आबिदीन साहब, बोलिए। जैनुल आबिदीन साहब की आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद इस्माइल, बोलो भाई। मोहम्मद इस्माइल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। इजाज खान, बोलो। Yeah. Assalamu alaikum, sir. I'm Izaz Khan from Germany. हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा याद है। Just wait, wait. Yeah. मैं तुम्हारी सीवी पे काम कर रहा हूँ। सीवी पे Okay. जैसे मतलब मैं तुमको बता दूंगा इंशाल्लाह। Okay, and you are going to Germany. Have a safe journey. No, I'm going for Pakistan, and then after that I will be going for Umrah inshallah. Okay. Not Germany. I may visit Germany this year, sometime this year in the fall. I may visit Germany. Okay. Finland as well, inshallah, and Iceland as well. But when I do, I will let you know, inshallah. Okay. Thank you, sir. But I have a question. Why I'm not getting the positive response from the companies? Because your when resume is not there. Once you have your resume, then you will get the response. Yeah, I think so. It's incorrect. So I'm waiting. It needs to be updated to reflect what you're going through. Yeah, of course. Absolutely. So I will try that before I leave, or even when I'm in the plane. जब मैं जा रहा हूँ, तो मेरे पास access होगा internet का. I'll be able to give you your resume there and then. Okay. Thank you, sir. Thank you. Have a safe journey. Okay. इसके बाद हमजा जी, हमजा बोलिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है। आपसे इंटरेक्शन इस तरह हुआ कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी साहब कि मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ, तो वहाँ पे अल-नाफ़ी का जिक्र चल रहा था, तो मैंने रिसर्च की और बाकी आपके कोर्सेज वगैरह देखे, तो इस तरह आपसे इंटरेक्ट हुआ, आपका ग्रुप ज्वाइन किया मैंने, तो इस तरह आपसे मुलाकात हुई। तो सर बेसिक मेरा बैकग्राउंड जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा। ये तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और बाकी जो मैंने अपनी डिजिटल स्किल्स में मैंने अपने आप को इन्हांस अभी तक जो किया है वो डिजिटल मार्केटिंग में किया है, ई रोजगार के थ्रू। ठीक है सर, जिसकी सर्विसेज अभी मैं अपवर्क के ऊपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर मेरा कुछ गोल्स हैं, माइट बी पॉसिबल है और नॉट, but I have some plans to move Canada on express entry because I have graduation and a certain sort of experience, and now I want to improve my knowledge according to IT point of view. So need your suggestion. What will I do? Kindly tell me about little bit about this. देखो भाई, तुम्हें अगर एक्सप्रेस एंट्री में आना है या किसी चीज में भी आना है, अगर तुम्हारे पास ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर ना बड़ा फोकस है इस वक्त एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी सब,
इवन कि तुम्हें अगर जॉब ऑफर भी चाहिए तो तुम्हें वो जॉब ऑफर लेटर भी मिल सकता है इसका, ठीक है, बहुत तमाम चीजें भी तुम्हारी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जाहिर सी तुम्हारे पास स्किल्स होने चाहिए। मार्केटिंग स्किल से तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मार्केटिंग स्किल से यहाँ तुम्हें कोई नहीं रखेगा कि तुम्हें जॉब दे दे या कुछ कर ले, वो बहुत मुश्किल है। हाँ ये जरूर है जी कि जी अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने डेवऑप्स सिसऑप्स एआई पढ़ लिया और तुमने यहाँ पर इंटर्नशिप में काम भी कर लिया और सब कुछ कर लिया और तुम उसको फिर दिखाते हो, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि तुम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की वो है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पता नहीं उसमें कुछ क्या है, फेडरल सिस्टम है, ठीक है ना, फेडरल जी एंट्री जी जी। और एक एक्सप्रेस एंट्री भी है। तो तुम्हारे पास स्कोर हो जाएगा। तुम्हारी एज क्या है, व्हाट इज योर एज? सर माय एज इज अराउंड अबाउट 24। तो तुम्हारे पास एज के पॉइंट्स ज्यादा हैं, लेकिन तुम्हें यू नीड टू जी स्कोर आइट्स। अगर तुम्हारा आइट्स में 777 आ जाए या 7.5 जी जी 7 आ जाए तो जी तुम्हारा जी एक्सप्रेस जी एंट्री जी में बहुत ऊपर चलेगी, ठीक है। जी जी ये हम यहाँ पर तैयारी कराते हैं, रोजाना 1 घंटे की क्लास होती है, जाओ बैठो करो, ठीक है। जी जी अगर तुम्हें बाहर निकलना है, यूके निकलना है, जर्मनी जाना है, कहीं पर भी जाना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे हैं, मैंने इंजीनियर्स का सेशन भी किया था, उसमें मैंने बताया भी था। लेकिन अगर तुमने डेवऑप्स सिसऑप्स एआई पढ़ लिया, डेवऑप्स सिसऑप्स ब्लॉकचेन पढ़ लिया, या डेवऑप्स सिसऑप्स ऑफेंसिव सिक्योरिटी पढ़ लिया, या डेवऑप्स सिसऑप्स कॉमन एलिमेंट डेवऑप्स सिसऑप्स है, उसमें साइबर सिक्योरिटी भी अंदर आ जाता है, तुमने वो पढ़ लिया, तो उसका पढ़ने का तुम्हें फायदा ये है कि तुम ना बहुत अच्छे तरीके से तुम पाकिस्तान में भी बैठ के जॉब कर सकते हो। पाकिस्तान में क्या तुम्हारे पास 1.5 लाख की जॉब है? जी जी। मैं अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हो जाते हैं। नहीं, अपर की वो तो बात, है। जॉब की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इतनी मैकेनिकल इंजीनियर्स को इतनी तो नहीं मिलती है ना। नहीं 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 सर जी, नहीं इतनी हाँ, नहीं है। तो जो इंजीनियर्स करता है बहुत। 25,000 पे इंटर्न ही लगता है, वो उसको रगड़ा मारते हैं, सब कुछ जी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जो लड़का था, अगर तुम शुरू से बैठे हुए थे, तुमने सुना उसका, वो अभी आया था, वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट है। गिफ्ट यूनिवर्सिटी कोई है, पता नहीं, अजीब सा नाम है गिफ्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। आ, और वो वहाँ का ड्रॉप आउट है, उसने छोड़ दी थी क्योंकि वो टीचरों को बोलता था कि यार तुम्हें ये काम नहीं आता, ये टीचरों को वाकई तुम्हें खुद भी मालूम है, ठीक है। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया भर की तमाम जो यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान नहीं खाली, उनके जो ट्रेनर्स हैं, वो उन्होंने किसी ने भी इंडस्ट्री में काम नहीं किया हुआ, सो दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तुम्हें किताबी नॉलेज दे देते हैं और तुम उस किताबी नॉलेज को एक्सपेक्ट करके जाते हो कि यार मेरी जॉब हो जाएगी, तो वो नहीं हुई ना, तभी तुम अपवर्क में बैठे हुए हो, इधर उधर काम करो ना। देयर इज नो हार्म इन, ठीक है, बट दैट इज नॉट योर कैरियर। ये कैरियर तो नहीं है ना, ठीक है। ये एक हवाई रोजी होती है, तो तुम काम कर रहे हो, यू नीड समथिंग सस्टेनेबल एंड इवन दैट गोइंग आउटसाइड। सो उसके लिए तुम्हें अगर तुम डेवऑप्स सिसऑप्स एआई पढ़ते हो तो वो तुम पढ़ के आगे निकल सकते हो, उसमें तुम्हारे पास चांस है बहुत अच्छे। जर्मनी जा सकते हो, ठीक है ऐसा। मास्टर्स करने के लिए पैसे जमा करो, जर्मनी चले जाओ। ये लेके जाओगे तो जर्मनी में मेरे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास जो हैं, पाकिस्तान से गए, वहाँ पर अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वॉल्क्सवैगन, BMW, सीरीज, फाइजर हो गया, ठीक है ना, एक और भी हिल्टन फार्मास्यूटिकल, मुख्तलिफ कंपनीज है जिसमें लगे हुए लड़के काम कर रहे हैं, राइट, जर्मनी के अंदर। वहाँ तुम वोडाफोन हो गया, इसमें तुम इन जगह काम कर सकते हो। दूसरी जो जगह है तुम्हारे पास, वो फिनलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, तुम वहाँ जा सकते हो। यहाँ जाना कब्र नजर आसान है। यूके में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। आसान का मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही चले आओगे, कैसा नहीं होता, तुम्हें एजुकेशन अगर जी से जी सब, ठीक है। अगर तुम्हारा स्किल होगा तो तुम वहाँ जॉब भी कर सकोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तुम इसको देखते हो, क्या नाम है, जो तुम्हारे पास जो दूसरा वो है ऑप्शन यूके का है, तो यूके में तो मास्टर्स करने जा सकते हो। अगेन मेरे पास हजारों बच्चे बैठे हुए हैं जो अभी हमारे पास आए हैं, डिग्रियां करके बैठे हुए हैं, MSc इन साइबर सिक्योरिटी, MSc इन डेटा साइंस, MSc इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, MSc दिस, MSc दैट, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। PSW है, डिग्री करने से PSW मिल गया, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज उनको पढ़ाया, इंडस्ट्री में बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद उसमें और चीजें ऐड कर सकते हो। तो 3 कॉमन एलिमेंट क्या है? डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई, ये मिलाओ। इसके साथ तुम ना साइबर सिक्योरिटी अंदर आ ही जाता है, इन के अंदर गवर्नेंस सिस्टम कंप्लायंस। इसके बाद तुम ब्लॉकचेन डाल दो, इसके मशीन लर्निंग डाल, मतलब कि वो तो एआई ऑप्स के अंदर ही आ गया। इसके बाद तुम उसके अंदर ऑफेंसिव सिक्योरिटी डाल दो, स्केडा इंजीनियरिंग डाल, I mean, whatever you want to add, you can keep on adding, ठीक है ना, IoT डाल दो, जो भी।
इन 3 कॉमन एलिमेंट्स डेवऑप्स एसऑप्स के, अगर तुमने कर लिए तुम जल्दी सिक्योर कर सकते हो जॉब। अभी जैसे तुम अपवर्क में काम कर रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए जो भी जमा करते हो, वट एवर द केसेस, लेकिन अगर तुम इस पे काम करते हो तो तुम ज्यादा अच्छे तरीके से पैसे कमा सकोगे। हमारी इनकम एक सस्टेनेबल इनकम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे बाहर जाने के चांसेस है। अपवर्क कर लो, तुम जितना काम कर लो तुम बाहर तो नहीं जा सकते, जा सकते हो नहीं, ठीक है ना। वो टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। हाँ, मतलब कि बाहर जाने के लिए तुम्हारे पास एजुकेशन और स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। जी जी। मिसिंग, तो यहाँ आते हो तो तुम्हें इंटर्नशिप, रेज्यूमे डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब चीजें करवाई जाती है। वे करके जाते हो तो फिर कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। ओके ओके। और सर इसमें क्या डिप्लोमा ट्रैक होगा, क्या होगा, लाइक आप काइंडली इसमें मुझे थोड़ा गाइड कर दें, कोर्स होगा या डिप्लोमा होगा? एट द एंड ऑफ दिस कोर्स और डिप्लोमा व्हाट विल आई गेट? आई सर्टिफिकेट होगा सर, क्या होगा? सर्टिफिकेट कोर्सेज अलग हैं, डिप्लोमा कोर्सेज अलग हैं। हमारे पास इस वक्त यूके की हो चुकी है जो हमारे पास है, ठीक है ना, एजुकॉल की, जिसकी वजह से हम तमाम क्वालिफिकेशंस को एक्रेडिटेड करवाते चले जा रहे हैं। इस वक्त 4 क्वालिफिकेशन एक्रेडिटेड हो गई हैं। एआई ऑप्स की एक्रेडिटेशन सबमिट हुई हुई है। महीना लगेगा, जो भी होगा तुम्हारे साथ नजर आ जाएगी। यू कैन स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, विल रजिस्टर इन अ सर्टिफिकेट कोर्स बट इट विल बिकम इनटू डिप्लोमा बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द एक्रेडिटेशन प्रोसेस, राइट। तो ये डिफरेंस है। सो यू कैन कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अभी तुम स्टार्ट करोगे एग्जाम, उसका एग्जाम अलग पास करना है। एग्जाम की फीस 250 पाउंड है, वो उनके पास 180 पाउंड जाती है, और जो बाकी रिमेनिंग है वो हमारे पास बचती है जो हम तुम्हारा एग्जाम लेते हैं, क्योंकि आधी सर्टिफिकेशन की फीस है और एग्जाम की फीस 250 में से 180 पाउंड उनके पास जाते हैं, 70 हमारी एग्जामिनेशन फीस, समथिंग लाइक दैट, राइट। बाकी उनके पास चली जाती है। दैट्स व्हाट वी डूइंग। बट एनीवे, तुम्हें वो पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे, उसके बाद तुम्हें एग्जामिनेशन फीस अलग देनी, वट एवर द केस। वो तुम्हारी, जब हम जमा कराओगे हम तुम्हें उनके पास भिजवा देंगे, तुम्हें वो सब रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हारे पास वो सब कुछ आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू गो इनटू द सिस्टम, राइट। वो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास है, हमारे पास नहीं है। दैट्स ऑल विद देम, राइट। वी आर बिकमिंग अ यूनिवर्सिटी, हम उसके ऊपर प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वी आर बिकमिंग अ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन यूके, ताकि हम स्टूडेंट्स फिर यहाँ से हमारे डिप्लोमा करते करते बाहर भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, हमारे पास आ सकते हैं, कहीं भी जाने जा सकते हैं। दैट इज समथिंग वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। व्हाई यूके? यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। यूके में सेटल होना हमारे लिए बहुत आसान है। और पहले गौरव ने हमें मारा था, अब हमारी बारी है उनकी पिटाई करने की, ठीक है ना। तो हम उनको इंटेलेक्चुअली पीट रहे हैं, उन्हीं की अच्छी जॉब्स पकड़ के, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी, बिकॉज वो पढ़ नहीं रहे। जब वो पढ़ते नहीं है तो फिर ऐसी बात है, हम आगे निकल जाते हैं। दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह निकलूंगा, मुझे जाना है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।